Hello students, in previous video we have discussed about land resources and soil resources, and today we are going to discuss about the last part of our chapter 2, that are water resources. You already know, we have discussed earlier also, that Earth is a watery or blue planet. Earth is called a watery planet because of abundance of water in it, and around 70% of Earth's surface is covered with water. That is why we call it a blue planet. But out of 70%, only 3% is usable or potable water, and remaining 97% is sea water or saline water or salty water, you can say. And we all know ocean water or sea water is not proper for using or utilizing it, because it is not good for our health. तो सिर्फ 3% जो हमारे पास फ्रेश वाटर है या यूजेबल वाटर है, सिर्फ वही हम यूज़ कर सकते हैं. लेकिन उस 3% में से भी इसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है. दैट इज़ 0.3% इज़ इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स और लेक्स, 2% is in form of ice caps or glaciers, and 0.68% is in underground water, or you can say water in atmosphere also. Water continuously gets circulated in all the spheres of the earth. You know that in 7th class you have read about water cycle, and you know about the water cycle, that water continuously gets circulated in all the spheres of earth by the processes of evaporation, condensation and precipitation. Let us discuss hydrological cycle with the help of a diagram. It is a water body. It can be lake, river or pond, any water body it can be. The water from this water body evaporates in the atmosphere, and also the loss of excess water from the leaves of the trees is called transpiration. इन दोनों ही प्रोसेसेस से हमारे एटमॉस्फेयर में वेपर्स आ गए हैं पानी की, ऊपर जाके ये क्लाउड्स में कंडेंस होते हैं. कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ कूलिंग डाउन ऑफ वेपर्स, and it gets converted into then water droplets. On cooling down, it is transported, and with the help of precipitation it falls on the earth surface. देखिए, इवेपोरेशन हुई, वेपोराइज हो गया पानी एटमॉस्फेयर में, ऊपर क्लाउड फॉर्मेशन हुई, कंडेंस हुआ. जब ये वाटर पार्टिकल्स कंडेंस हो गए, ये प्रेसिपिटेशन के रूप में हमारी अर्थ की सरफेस पर आते हैं. माउंटेन्स पर ये इन द फॉर्म ऑफ स्नो, अर्थ सरफेस पे इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल आते हैं. और जब ये स्नो जो है मेल्ट होती है, वो दोबारा से सरफेस रन ऑफ के द्वारा वाटर बॉडीज़ में कलेक्ट हो जाती है. अगेन दिस प्रोसेस continuously gets circulated in our atmosphere in all the spheres of earth. This is called hydrological cycle. Annual precipitation in the world is 2.9 millimeters per day and 1050 millimeters per year. एक दिन में 2.9 millimeters एवरेज रेनफॉल है, और पर ईयर अगर हम देखते हैं तो 105 millimeters पर ईयर है. देखिए, अब हमने देखा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है, लेकिन आज की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, दैट इज़ पोल्यूशन ऑफ वाटर इन रिवर्स. हाउ डज रिवर वाटर गेट्स polluted? Two reasons are there of pollution. First is industrial waste, and second is urban domestic waste. When these wastes are dumped into rivers, it gets polluted and it causes many diseases which can harm the human life. जो केमिकल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो जो इंडस्ट्रीज़ बड़ी बड़ी लगी हुई हैं, वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट, जो केमिकल वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो ड्रेनेज सिस्टम के द्वारा रिवर्स में डंप कर देते हैं, और इसी वजह से पोल्यूशन ऑफ वाटर होता है. ऐसे ही हम शहरों के निवासी या गाँव के निवासी जो भी रिवर्स में गंदगी डालते हैं, आपने देखा होगा जो ड्रेनेज है, सीवेज सिस्टम है, वो सारा जो गंदगी है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो सब रिवर्स में डंप किया जाता है, और इन्हीं वेस्ट के द्वारा जो है वो हमारी पोल्यूशन होती, रिवर्स की पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोल्यूशन ऑफ वाटर इन रिवर्स. नेक्स्ट टॉपिक इज़ मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट. अब ये मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स होते क्या हैं?
series of dam or a dam on a river to store or use water for various purposes. मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स जो है आज दुनिया में हर जगह हर कंट्री अपना रही है, बिकॉज इट इज़ वेरी यूजफुल टू स्टोर रिवर वाटर. इन दिस रिवर वैली प्रोजेक्ट ऐसा एक डैम या फिर एक से ज़्यादा डैम एक ही रिवर पर बिल्ड किए जाते हैं और इस स्टोर्ड वाटर को जब भी ज़रूरत होती है वो अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है. अब ये पर्पसेस क्या क्या हो सकते हैं? इट कैन बी इरिगेशन, जैसे जहाँ पर भी डैम है और उसके आसपास का इलाके में अगर इरिगेशनल फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं हैं तो इस स्टोर्ड वाटर से इरिगेशन किया जा सकता है. नेविगेशन, some dams are very big. For example, in India it is Bhakra Nangal Dam that is very big और इसमें नेविगेट भी किया जा सकता है. नेविगेशन इज़ जर्नी थ्रू वाटर. इसके बाद जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. मोस्ट ऑफ द डैम्स जो हैं उनमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है क्योंकि इट इज़ वेरी इजी टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी नियर अ डैम और अंडर द डैम. नेक्स्ट इज़ एफॉरेस्टेशन, जहाँ भी रिवर वाटर को स्टोर किया जाता है बाय अ डैम और मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट, उस जगह पर आसानी से आसपास एफॉरेस्टेशन बहुत लार्ज अमाउंट में किया जा सकता है बिकॉज देयर इज़ वाटर इन लार्ज अमाउंट. नेक्स्ट इज़ इट कंट्रोल्स फ्लड्स ऑल्सो. ये जो डैम्स होते हैं यहाँ पर स्टोर कर लिया जाता है पानी, तो आगे जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है और रिवर वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है तो डैम्स के द्वारा इसको रोक लिया जाता है और जब भी ज़रूरत होती है इसको यूज़ किया जाता है और इसी वजह से फ्लड्स को भी कंट्रोल किया जा सकता है. और ये जो मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं वो हर जगह हर कंट्री के लिए बहुत ही यूज़फुल हैं क्योंकि इट सर्व्स मैनी पर्पसेस. Examples of multipurpose river valley projects are Bhakra Nangal Dam in India, it is in Punjab, Hirakud Dam in India, Aswan River Valley Project in Egypt and Hoover Dam in USA. These are very big dams और ये बहुत ज़्यादा पानी एक साथ स्टोर कर सकते हैं. Besides serving many purposes, multi-purpose river valley projects have some ecological problems also because some scientists say that ecological problems are caused by these multi-purpose river valley projects. अब इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर दोज प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू नेचर एंड एनिमल्स. means related to environmental disorders are ecological problems. अब ये ecological problems कौन कौन सी क्रिएट हो सकते हैं? कुछ साइंटिस्ट ऐसा सोचते हैं. देखिए, फॉरेस्ट सबमर्ज अंडर वाटर, ये कब सबमर्ज हो सकता है? वैसे तो जो पर्पसेस है उसमें मैंने आपको अभी बताया कि एफॉरेस्टेशन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है उस स्थिति में कई बार जो आसपास के फॉरेस्ट हैं, डैम जब पूरा भर जाता है तो आसपास के फॉरेस्ट जो हैं वहाँ पर पानी जो है वो पूरी तरह से भर जाता है. उसकी वजह से कई फॉरेस्ट को नुकसान भी हो सकता है. उसी स्थिति में जब हैवी रेनफॉल होगी तो इट कैन कॉज फ्लड्स ऑल्सो. अभी हमने पिछले वीडियो में हमने देखा कि फ्लड्स जो है कंट्रोल करता है, लेकिन हैवी रेनफॉल के समय इट कैन कॉज फ्लड्स ऑल्सो. नेक्स्ट इज़ रिवर वाटर गेट्स डाइवर्टेड. अब डाइवर्टेड का मतलब है कि रिवर का जो पाथ है वो कभी कभी चेंज भी हो जाता है, क्योंकि रिवर के ऊपर जब डैम बनाया जाता है तो कई बार ऐसा भी होता है कि रिवर का जो एक्चुअल पाथ है, जो रास्ता है, उसको चेंज कर दिया जाए. ओके. नेक्स्ट इज़ डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन. अब जो भी जहाँ पर भी डैम बनाया जा रहा है, बहुत हाई लेवल पर ये डैम का कंस्ट्रक्शन होता है, तो जिस भी जगह एक डैम का कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ पर पॉपुलेशन जो है आसपास से साफ़ कराई जाती है इन द सेंस कि उनको ये कहा जाता है कि अपनी ये जगह छोड़ के दूसरी जगह पर आप शिफ्ट कर जाएं. तो इसका मतलब है पॉपुलेशन भी डिस्प्लेस हो जाती है. नेक्स्ट इज़ ड्यूरिंग हैवी रेन्स इट कॉजेज फ्लड्स. और जब फ्लड्स आएंगी तो ऑब्वियसली सॉइल इरोजन होगा ही होगा. तो इस वजह से सॉइल इरोजन भी हो सकता है ओनली इन हैवी रेन.
एक्वेटिक लाइफ गेट्स अफेक्टेड। अब एक्वेटिक लाइफ में कौन कौन शामिल है, क्या क्या चीज़ें शामिल है? मेरीन एनिमल्स एंड मेरीन प्लांट्स कम्स अंडर एक्वेटिक लाइफ। तो एक्वेटिक लाइफ क्यों इफेक्ट हो सकती है? क्योंकि स्टिल वाटर में कभी भी मेरीन एनिमल्स या प्लांट्स जो हैं वो जीवित नहीं रह सकते, दे डाई इन स्टिल वाटर। सो दीज आर सम इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। लेकिन फिर भी सभी कंट्रीज़ मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स अपना रही हैं, क्योंकि ये बहुत बार बहुत यूज़फुल भी साबित होते हैं। Hydrological cycles and MRVPs means multi-purpose river valley project. Now we will discuss about water conservation. What is water conservation? As you all know, water is very precious for all of us, and without water we cannot live on this earth. So we have to conserve water. हमें ये सोचना है कि वाटर को कंजर्व कैसे किया जा सकता है। फर्स्ट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? जब हैवी रेनफॉल्स होती हैं तो उस समय हम एक ज़मीन में गड्ढा या कोई भी पिट बनाकर उस रेन वाटर को उसमें कलेक्ट कर सकते हैं, और जब भी हमें यूज़ करना हो उस रेन वाटर को यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट इज़ एफॉरेस्टेशन। ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में अगर पेड़ लगाएंगे तो भी हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ रिसाइकलिंग ऑफ वाटर। रिसाइकलिंग ऑफ वाटर का मतलब है जो ऑलरेडी यूज्ड वाटर है उसको रिसाइकलिंग बाय डिफरेंट मेथड्स अगर हम कर सकें और उसको दोबारा से यूज़ करने लायक बना सकें तो उससे भी हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं। वी कैन कंजर्व वाटर बाय रिसाइकलिंग इट। Next is modern methods of irrigation. What are the modern methods? You all know that some of the modern methods of irrigation are drip irrigation और sprinkler method. अब drip irrigation में क्या होता है? पतली पाइपलाइंस जो हैं पूरे फार्म में जहाँ भी इरीगेशन करनी है वहाँ पर फार्म में बिछा दी जाती हैं और उनमें छोटे छोटे होल कर दिए जाते हैं। स्मॉल होल्स आर डन इन दीज पाइपलाइंस, और जहाँ पर भी ये होल्स किए जाते हैं वो डायरेक्ट पानी जो है वो डायरेक्टली रूट्स ऑफ द प्लांट्स में डल जाता है। ऐसे ही स्प्रिंकलर मेथड भी एक बहुत अच्छा इरिगेशन मेथड है। इससे अलग अलग पाइपलाइंस के थ्रू स्प्रिंकलर्स लगा दिए जाते हैं, फुहारे लगा दिए जाते हैं, और जहाँ पर भी जिस भी एरिया में इरिगेशन करनी है बहुत ही आसानी से इस स्प्रिंकलर मेथड से हो सकती है। नेक्स्ट इज़ वाटर फिक्सचर्स एट पब्लिक प्लेसेस। आप अब कभी मॉल्स में या सिनेमा हॉल्स में गए हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो टैप्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि अगर आप अपना हाथ अंदर डालेंगे, हाथ उसके नीचे रखेंगे तो ही पानी आएगा, और लिमिटेड अमाउंट में पानी आता है। दैट आर कॉल्ड वाटर फिक्सचर, यानी वाटर इन फिक्स्ड अमाउंट्स। ऐसे सेंसर टैप्स जो हैं पब्लिक प्लेसेस पे अगर लगा दिए जाएं तो भी हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ बिल्ड डैम्स टू स्टोर वाटर और टू कंजर्व वाटर। जितना ज़्यादा डैम्स बनाए जाएंगे उतना ज़्यादा जो है पानी को स्टोर किया जा सकता है। और नेक्स्ट इज़ अवेयर पीपल। यू ऑल नो वाटर इज़ वेरी important, so we must aware people about the importance of water and the decreasing quantity of water day by day. So we have learned about many of the resources, natural resources in this chapter, about land resources, soil resources and water resources. We will be discussing more of natural resources in the next video. So till then, bye bye, and do watch next video.